नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में तैनात अफसरों की कुंभ ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ाई गई। 10 कुकी विधायकों केंद्रों में बातचीत के जरिए समाधान के निर्णय का स्वागत किया। मोहनलालगंज में बेटे ने संपत्ति विवाद में अपने मां बाप की हथौड़े से कर दी हत्या। 2 ट्रेनों के एक ही नाम से यात्री हुए कंफ्यूज, दिल्ली पुलिस ने बताया कैसे मची भगदड़। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले की शुरू की जांच। खबर हुगली जिले के तारकेश्वर से है, जहां ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना तारकेश्वर ग्राम पंचायत के मनोहरपुर इलाके में हुई है। बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है। দাদা ঘটনাটা কি হয়েছিল? দেখুন, আমি বাথরুমে ছিলাম, বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখছি বলছে যে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেই অবস্থা দেখছি বাচ্চাটা পড়ে রয়েছে এবং আরও লোকজন জল ফল দিচ্ছে। তখন সেই অবস্থা আমি হসপিটালে বাইকে করে নিয়ে গেলাম। রাস্তায় যেতে যেতে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার বেডেতে শুয়েছি, তখনই ডাক্তারবাবু এসে দেখলেন, দেখি স্পট ডেড। বাচ্চাটা কি প্রাইভেট যাচ্ছিল নাকি? না, প্রাইভেট যাচ্ছিল, মির্জাপুরে ওই আঁকার, আজকে রবিবার আঁকার হকতে যাচ্ছিল আর কি। আচ্ছা, কিসে পড়তো জানেন বাচ্চাটা? না, সেটা জানি না, 10-12 বছরের ছেলে। আচ্ছা, বাড়ি এখানেই? 7-8 বছর বয়স? 8 বছরে বলছি, 8 বছরে। আচ্ছা আচ্ছা, হসপিটালে নিয়ে গেছিলেন? আমি নিয়ে গেছিলাম। মাথা দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। হ্যাঁ, নিয়ে যেতে যেতে রাস্তাতে হয়েছে। আমার মোটরসাইকেলটা দেখুন, আমার মোটরসাইকেলেও রক্ত বেরিয়েছে। হ্যাঁ, এই অবস্থায় নিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু দেখলেন। এলাকাটার নামটা কি? মনোহরপুর পাত্র। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে কেদারনাথ পাত্র। ঘটনাটা ঘটেছিল, একটা ট্রাক্টর যাচ্ছিল এখান থেকে, মানে ইট খালি করে চরণ ভাটার। তো ওই পাশে একটা মানে রাস্তার, এখন তো এই যে পাইপ লাইন গেছে, ঘাঁজ হয়েছে, তখন ছেলেরা পড়তে যাচ্ছিল, ওখানে সাইড হয়েছে, ট্রাক্টর যাচ্ছিল আর ছেলেটা উল্টে পড়ে যায়, একটা মেয়ে আর একটা ছেলে। আচ্ছা, মেয়েটা বেঁচে যায়, কোনো রকম গাড়ি তোলাতে বেরিয়ে গেছে, আর ছেলেটা ওপর দিয়ে মানে চাকার পিছনে চাকাটা চলে গেছে, চলে গিয়ে মানে হসপিটাল নিয়ে গেছে, ডেথ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি কোথায় ছিল? বাড়ি হচ্ছে বল্লীপুর গ্রামে, এই যে পাশেই বল্লীপুর গ্রামে বাড়ি। আচ্ছা, হ্যাঁ, টিউশনি যাচ্ছিল মির্জাপুরে। এখানে মর্মান্তিক ঘটনা। পড়তে যাচ্ছিল। বয়স কত হবে ছেলে? 8-9 বছর। 8-9 বছর বয়স হবে। কিসে পড়তে জানেন ছেলেটা? কিসে পড়তে জানেন? থ্রিতে পড়তো। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ সৈয়দ আলী। ডেজিগনেশন? হ্যাঁ, মুনারপুর বল্লীপুর ग्राम बूथ सभापति। खबर वेस्ट बंगाल के हुगली से है, जहां घर पर पिता का पार्थिव शरीर छोड़कर एक साहसी बेटी मन को मजबूत कर आंखों में आंसू लिए बोर्ड की परीक्षा में बैठी। दरअसल मुस्कान के पिता का शुक्रवार को निधन हो गया। शनिवार को पिता के पार्थिव शरीर को घर पर छोड़कर मुस्कान परीक्षा देने गई और उसी समय उसके पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। छात्रा मुस्कान का कहना है कि उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर और कामयाब बने। बता दें कि ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा के दौरान उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो और यदि वह परीक्षा के दौरान अचानक अस्वस्थ हो जाती है तो उसके लिए एम्बुलेंस और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी की गई थी। আমার বাবার হার্ট ব্লক করেছিল, ভর্তি ছিল, পরশুদিন রাতে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল, ভর্তি করেছিল, দিয়ে কালকে একটা ইনজেকশন দিয়েছিল, ইনজেকশনটা দেওয়ার পর হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। কবে মারা গেছে? কালকে 2টার সময় মারা গেছে, আজকে 11টার সময় মাটি হবে। মানে বাবার মৃতদেহ বাড়িতে রেখেই পরীক্ষা দিতে হবে? হ্যাঁ, মানে আমি স্কুলে থাকবো তখনই মাটি হয়ে যাবে। বাবা কি বলেছিল মানে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়? বাবা আমায় বলেছিলেন ভালো হয়ে যাক, তোকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবো আমি। তারপর
তারপরেই তো বাবার এরকম হয়ে গেছে। আজকে কি পরীক্ষা রয়েছে? আজকে অঙ্ক। কি মনে হচ্ছে যে বাবার যে যেটা ছিল, বাবা কি মানে স্বপ্ন টপ্ন দেখতো যে বাবা মনে করতো যে বাবা সবাইকে বলে বলে তো আমার মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, আমার মেয়ে ভালো নাম্বার পাবে, আমার মেয়ে টিউশন যায়, ভালো পড়াশোনা করে। বাবার সেই স্বপ্ন কি সত্যি করতে পারবে? চেষ্টা করবো সত্যি করার। কি নাম তোমার? আমার নাম মুস্কান খাতুন। মুস্কান খাতুন। মুস্কান খাতুন। छत्तीसगढ़ के आरंग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोयले से भरी ट्रेलर ने जिप्सम से भरी ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। बता दें कि घटना में ट्रेलर चालक की जलकर हुई दर्दनाक मौत। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरंग पुलिस और आग बुझाई। ये घटना आरंग के पारा गांव नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां एक महिला ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2024 में शोएब नाम के एक युवक से हुई थी, लेकिन 3 महीने बाद युवक ने महिला के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। युवक केवल एक बच्चा चाहता था, क्योंकि उसकी पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसके चलते उसने महिला को धोखे में रखकर शादी की। जब महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया तो युवक ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और बच्चे को छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। सहारनपुर की एक मुस्लिम लड़की का तकरीबन 1 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई, लेकिन 1 साल पश्चात बीतने के बाद ही उस परिवार के अंदर आए दिन उस लड़की के साथ उसके पति ने मार पिटाई करी और आज वो पीड़ित लड़की मेरे साथ मौजूद है। हालांकि हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे, कोर्ट के मानकों के अनुसार वो लड़की मेरे साथ खुद मौजूद है और वो अपनी आप बीती हमारे साथ बताएगी। क्या हुआ था आपकी वो शादी कौन से सन में हुई थी? जी मेरी फरवरी 2024 में हुई थी, 28 फरवरी को। जी मेरे हस्बैंड ने पहले शादी कर रखी थी, मतलब मेरे से 2 साल रिश्ता भी रहा उसका, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं करी। मेरे पापा ने शादी से 2-3 दिन पहले उन्हें बुला के भी पूछा, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं करा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर 3 महीने बाद बातचीत खत्म हो गई, तो फिर मैंने कोर्ट में केस किया था। मैं कोतवाली थाने में भी गई थी और मंडी थाने में भी गई थी, लेकिन मेरी वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद हमारा फैसला हो गया था। तो अब मैं छेले में थी, मेरे मुन्ना हुआ था, तो मुझे यहाँ से समझा बुझा के मेरी फैमिली से बातचीत करके, उनके बड़े भी बैठे थे जैसे कि उसके मामा, उसके मौसा, उन्होंने बातचीत की थी कि अगर जो कल को कुछ होता है तो हम इसके जिम्मेदार होंगे। तो उन्होंने, जैसे कि अब मैं घर गई थी 11 तारीख को, तो उन्होंने मेरे साथ फिर से दोबारा बदतमीजी की। मेरी सास ने भी मुझे मारा, मेरे ससुरे ने भी मारा और मेरे हस्बैंड ने भी मारा, मेरे से बदतमीजी करी और पूरा परिवार खड़ा था और मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहा था। अब उनका कहना यह है कि हम तेरे से लड़का लेके इसकी पहली पत्नी को देंगे, और वो दिल्ली रोड पे रहती है और वो भी मुझे बार बार मतलब धमकी देती है। अच्छा, आपने कहा कि उसकी कहीं पहले से भी शादी हो रखी है, तो आपको कैसे मालूमात हुआ कि इन्होंने पहले से भी शादी कर रखी है? किन चीजों से आपको पता लगा? जी जैसे कि मैं वहां पे रहती थी, तो मेरी सास मतलब मेरे पास किसी को आने नहीं देती थी। जैसे कि मतलब हमारे वहाँ के एक रिलेशन में है, तो उसने मेरा आगे जिक्र करा था, तो तब मैंने अपनी फैमिली का आगे जिक्र किया था इस चीज के बारे में। जी तो तब मुझे पता चला था इस बारे में कि मतलब कि उसकी दूसरी शादी हुई हुई है। तो आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा छीनकर वो दूसरी उस महिला को देना चाहती हैं, तो क्या सिर्फ आपसे बच्चा लेने के लिए आपसे शादी की गई थी? जी मेरे से उसके क्योंकि बच्चे नहीं होते, तो उन्होंने, अब वो मुझे ये कह रहे हैं मेरे ससुराल वाले कि मतलब कि जैसे कि अब उसके बच्चे नहीं होते, अब हम तेरे से बच्चा लेके तुझे जान से मार देंगे। और परसों भी मतलब जब मेरे फैमिली वाले गए तो मेरे भाई के साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ मारपीट करी उन्होंने, और पूरी फैमिली ये कहती कि बच्चे तो हम इसके बाप को ही दिलवा के देंगे। जी अब बस मेरी योगी सरकार से बस सिर्फ यही दरखास्त है कि जैसे मेरी वहाँ के थाने में या यहाँ के थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो बस सिर्फ मेरी यही दरखास्त है कि बस सिर्फ मुझे उससे तलाक चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और बच्चा मैं उसे देने की नहीं। तो चलिए, आपने देखा ये वो मुस्लिम महिला थी जिन्होंने अपने आप का पूरा दुख दर्द हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि किस सहारनपुर से Pulse 24 पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो मनचले नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गए। 5 तारीख को दिन में ही दो मनचले एक नाबालिग लड़की को लेकर भागे और 5 तारीख से अब तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। इस घटना से भाई बहन भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घर में डर का माहौल है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। खबर सरसावा थाना अंतर्गत गांव मंडोर की है। सर मेरा नाम जोगिंदर है और रहने वाले हो? मंदौर के सर। क्या घटना घटी आपके साथ? सर मेरी लड़की 5 तारीख को 2 लड़के उठाकर ले गई और ये नाबालिग है, ये इसकी रिपोर्ट है जी। और सर पिछले भी उनने मेरे साथ बलात्कार करके आई मेरी लड़की के साथ में। उस पर पास्को धारा लगी थी सर। उसको 8.5 महीने बाद ही हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसमें सारे कागज के खिलाफ हैं जी। पास्को कहीं धारा है जी। और सर मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़की मुझे मिल जाए जी। मेरी लड़की नाबालिग है। मैं प्रशासन का आसान नहीं भूलने का जी। कहीं सूचना दी आपने? कहीं सर दी हो या कहीं मुकदमा चल रहा हो आपका? सर थाने में दी। कहाँ थाने में दी? सरसावा थाने में जी। अच्छा, उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? सर उन्होंने बोला कि प्रयास कर रहे हैं जी। कितने दिन से चल रहा लगभग? ये पिछला वाला पहले वाला जी। अब वाला कितने दिन? 5 तारीख में था जी। 5 तारीख की सुबह कर रहा था जी। क्या नाम है जी आपका? ममता। कहाँ के रहने वाले हो? मंदौर की। क्या घटना घटी आपके साथ? जी मेरी लड़की नाबालिग है। सुबह के 5 बजे 6 बजे उठाकर 2 लड़के ले गए जी। अच्छा, सूचना दी आपने कहीं थाने हाँ में? जी। तो क्या कहा? उन्होंने कहा जी कर रहे काम जी, अभी कर रहे, कोशिश कर रहे जी, आपकी लड़की मिल कितने जाएगी। दिनों से परेशान हो लगभग आप? 5 तारीख तक परेशान है जी। आज 5वां दिन है जी। आरोपी कौन है? कौन लोग उठा के लेके गए, अगर कुछ पता हो? हाँ जी, गौरव है और विक्की है जी। किस प्रकार के व्यक्ति हैं वो यहाँ पे गाँव में? उनका तो जी वारी गंदा है जी, दोनों का जी। खबर उत्तराखंड के टनकपुर से है, जहां महाविद्यालय में बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर S.K. कटियार के खिलाफ छात्रों ने पक्षपात और अभद्र व्यवहार की शिकायत की। छात्रों का आरोप है कि उन्हें इंटरनल परीक्षाओं में उचित अंक नहीं दिए गए, जबकि लिखित परीक्षाओं में प्रदर्शन अच्छा था। ABVP कार्यकर्ताओं और छात्रों के अभिभावकों ने महाविद्यालय में आरोपी प्रोफेसर का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर का व्यवहार मानसिक तनाव पैदा कर रहा है। ये आरोप पहले भी लगे थे, लेकिन शासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ABVP ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिए और जैसा ये छात्रों ने कल एक ज्ञापन हमें दिया था, तो उस बेसिस पे हमने उनको भी एक लेटर दे दिया है कि आप थोड़ा छात्रों के साथ आपका मृदुल व्यवहार रहे और उनके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके प्रति थोड़ा सा आप बच्चों को स्ट्रिक्ट ना रहें उसमें थोड़ा। कार्यवाही हमने उच्च स्तर के शासन जो हमारे हैं अधिकारी उनको भेज दिए, बाकी वो करेंगे जो भी उनको लेना एक्शन यहाँ से, क्योंकि मैं अपॉइंटी नहीं हूँ, अपॉइंटी हमारा डायरेक्टर और शासन है, तो शासन जो भी निर्णय लेगा इस पर। ये तो अपना इंडिविजुअल है ना भाई। अगर टीचर अपना डेकोरम मेंटेन नहीं करता है तो उसमें प्रिंसिपल क्या करेगा भाई? मेरा बिहेवियर अलग है, सबका अपना अलग अलग बिहेवियर है यहाँ पे। तो सूचित करेंगे जो भी निर्णय होगा वो। हम पूर्व में भी अधिकारियों ने ही निर्णय लिया, हम भी वही निर्णय लेंगे। इससे पूर्व में जो अध्यापक थे जिनके लिए बोला था तो उनका अटैचमेंट कर दिया गया यहाँ से दूसरे महाविद्यालय में। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने शनिवार को शामेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसआई अनोद कुमार और पुलिस बल मौजूद रहा। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में रविवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे जम्मू कश्मीर के 5 श्रद्धालुओं की कार को तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने जेवर टोल प्लाजा पर बस को पकड़ लिया। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राजीव सिंह, ARPO पेट्रोल डिपार्टमेंट। अच्छा सर, क्या मामला हुआ है सर अभी? सर ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। हम 53 किलोमीटर पे हमें कंट्रोल रूम से कॉल आई कि ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है बड़ा। तो यहाँ आके घटनास्थल पर देखा हमने। लोकेशन 48+500 राइट हैंड साइड RHS। इसमें क्या नाम है 3 फैटल और 2 मेजर हैं। और अभी गाड़ी का नंबर भी नहीं मिल पाया। गाड़ी की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, आपने देखा ही है। और ये कहानी है, हमने अपना 3 मिनट में यहाँ रन किया और आके एक्सीडेंट अटेंड किया ये। और हमारी एम्बुलेंस के द्वारा कैलाश हॉस्पिटल जेवर में शिफ्टेड करा दिया गया और पुलिस स्टेशन टप्पल में इनकी गाड़ी को अतिशी पहुँचाया गया। सर कितने लोग की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल है? तीन की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हैं। सर बच्चे भी है क्या इसमें? नहीं, बच्चा कोई नहीं था। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जबकि ये क्लियर नहीं हो पाया। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी ये आगरा साइड से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी ये विधिवत रूप से पता नहीं है। सर किस गाड़ी ने मारा है पता? ये भी नहीं क्लियर हो पाया अभी तुरंत की बात है। हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के निकट आज दोपहर करीब 1:30 बजे एक वेन्यू गाड़ी, जिसमें कि कुल 5 लोग जम्मू कश्मीर के सवार थे, जो कि प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के उपरांत अपने घर की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहे थे। पीछे से एक अज्ञात बस द्वारा उक्त वेन्यू कार को टक्कर मार देने के परिणाम स्वरूप वेन्यू कार में सवार कुल 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। 2 अन्य जो घायल हैं उनको उपचार हेतु निकटवर्ती कैलाश अस्पताल ग्रेटर नोएडा में भेजा जा चुका है। मृतक तीनों व्यक्तियों के शवों का पंचायतनामा भर के PM की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। परिजनों को सर सूचना दे दी गई? परिजनों को, मृतक व्यक्तियों के और जो घायल व्यक्ति हैं उनके सभी परिजनों को सूचना दे दी गई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ कृषि प्रदर्शनी के कोहिनूर मंच पर पुलिस कर्मी ने युवक को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि कोहिनूर मंच पर नाइट कार्यक्रम के दौरान दर्शक युवक व पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर पुलिसकर्मी बेकाबू होकर युवक को जमकर मारपीट करने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के औद्योगिक प्रदर्शनी का है मामला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।